Hello students, in this video we are going to discuss another numerical problem from Nutan ISC Physics book, class 11th, question number 8 from the chapter of uniform circular motion. Students, the question says a particle of mass 2 kg 2 into 10 to the power of minus 2 kg is moving with uniform speed of 4 meter per second in circular path of radius 1 meter. Find with the help of vector diagram the change in the velocity that takes place while when the particle moves from point A to point B, and also you have to find the change in the centripetal force. So students, this question once again is much more based on vector than it going to based on uniform circular motion. If you haven't yet seen my video on question problem number 6, please go and watch that video also. It's also based on the similar concepts. So both the question 6th and 8th are based on the similar concepts. So try to watch that video. The link would be given in the description box or on the top right hand corner. Click on the I button and you would get the link over there. So here students, the particle is moving on a circular path, and from point A the particle moves on and reaches point B, and you need to find out the change in the speed experienced by the particle while it moves from A to B. Now students, once again I would like you to remind about the velocity and the speed. Student, velocity always happens to be speed plus direction. तो बच्चों, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति वेलोसिटी की बात आपसे करने लग जाता है तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि आप ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की स्पीड लिखें और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें. सो एज पर द Cartesian coordinate system, this axis happens to be my positive x-axis and this axis happens to be my positive y-axis. और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बच्चों आई कैप होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन बच्चों प्लस जे कैप होता है. अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये माइनस आई कैप और इधर ये नीचे की तरफ माइनस जे कैप. ये सेंस ऑफ डायरेक्शंस हैं जिनको आपको यूटिलाइज करते रहना पड़ेगा किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. अब going ahead with this particular numerical problem number, you will find that the particle at point A is heading vertically upwards, that is along the positive y-axis. So the velocity of the particle at point A will be written as the speed, which happens to be 4 meter per second, and the direction, which is plus j cap. So बच्चों, velocity of the particle at point A becomes 4 j cap meter per second. Similarly, जब particle इस सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए पॉइंट बी पर आ गया तो बच्चों जो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर होगी वो स्पीड तो चेंज नहीं हुई, स्पीड अभी भी 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसका देखो डायरेक्शन बदल गया. अब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के बजाय अब किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है. तो उसका डायरेक्शन मैं कहूंगा माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग उसके डायरेक्शन को इंक्लूड करके स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे. तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी बच्चों हो जाएगा माइनस 4.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड. ये ध्यान रखना है, ये जो माइनस साइन है बच्चों ये डायरेक्शन सेंस से आता है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी रोल नहीं होता. तो बच्चों यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए और वेलोसिटी एट द पार्टिकल एट पॉइंट बी लिख दिया. अब मुझे क्वेश्चन पहला पूछा कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी. तो मुझे फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करना. बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity. बच्चों finally the particle reaches to point B, so change velocity at point B minus velocity at point A. इनका जो डिफरेंस होगा, वेक्टर डिफरेंस की बात हो रही बच्चों, ध्यान रखिएगा, will give me the change in velocity. तो what is the velocity at point B? That is 4 minus I cap
meter per second minus what is the velocity at point A, that is 4 j cap meter per second. So on rearranging this becomes minus 4 I cap minus 4 j cap meter per second. This is the change in velocity. बट बच्चों ये चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो मैं मैग्नीट्यूड किसी भी वेलोसिटी का वेक्टर का कैसे निकालता हूं, अगर वो आपको मालूम हो तो आप मैग्नीट्यूड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज फाउंड एज एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट जो होता है बच्चों उसका स्क्वायर। अगर सिर्फ हमारे पास प्लेन में ये वेक्टर डिफाइंड है, अगर स्पेस में डिफाइंड होता तो हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर द रूट। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में आपको दो ही कंपोनेंट मेंशन किया, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब बच्चों जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट कितना है बच्चों, वो है -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट कितना है बच्चों, वो भी है -4 का होल स्क्वायर। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा बच्चों 4√2 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑन सॉल्विंग इट आउट इट विल बी 5.65 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों कैलकुलेटर की मदद से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सिंपली 5.7 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अब अगर इसका डायरेक्शन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, चलिए जैसा वो भी क्विकली देख लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी था vb माइनस va बच्चों, इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं। चेंज इन वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज vb वेक्टर प्लस माइनस va वेक्टर। तो बच्चों vb वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्टेड है, देखो बच्चों vb वेक्टर जो है ये आपका इस तरह से डायरेक्टेड है, और जरा ध्यान दीजिएगा दिस इज माय vb वेक्टर, दैट इज माय फर्स्ट वेक्टर, इसमें मुझे ऐड क्या करना माइनस va वेक्टर। तो बच्चों va वेक्टर कैसे डायरेक्टेड था, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड था, तो माइनस va वेक्टर कैसा हो जाएगा बच्चों, तो वो नेगेटिव माइनस va वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये va वेक्टर प्लस जे कैप में है तो माइनस va वेक्टर नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अब मुझे करना क्या है कि ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर I have to place the tail of the second vector, that is minus va वेक्टर। तो बच्चों ये आ गया आपका माइनस va वेक्टर। हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेक्टर यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों फर्स्ट वेक्टर इज माय vb वेक्टर, तो ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर आई हैव प्लेस्ड द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, दैट इज माइनस va वेक्टर। देन the resultant vector or the change in velocity vector will be directed by a vector originating from the tail of the first vector to the head of the second vector। तो बच्चों ये जो वेक्टर आया ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा, और ये जो एंगल है बच्चों ये एंगल थीटा मुझे इस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगी। और va वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ये भी 4 मीटर पर सेकेंड का मैग्नीट्यूड है, और vb वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसको मैं निकालूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू द कंपोनेंट ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो यहाँ पे y कंपोनेंट क्या है, माइनस va वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और x कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ vb वेक्टर, और दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं बच्चों तो ये निकल के आ जाएगा 1, देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो बच्चों ये जो थीटा आया ये 45 डिग्री का है, और ये किधर की तरफ डायरेक्टेड है, ये डायरेक्टेड है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो प्लीज टेक केयर, आपका डायरेक्शन हो जाएगा 45 डिग्री साउथ वेस्ट। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से आप इसका डायरेक्शन भी फाइंड करके बता सकते हैं। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस सॉल्यूशन से हेल्प मिली होगी कि इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं।
बच्चों सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है टू डिटरमाइन द चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं। चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसलिए जो फोर्स पॉइंट ए पे निकलेगी वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा पॉइंट बी पे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी का फॉर्मूला पढ़ रखा था, वो था mv²/r। तो यहाँ पे बच्चों मास ऑफ द पार्टिकल कितना दे रखा, 2 × 10⁻⁻² kg। किस स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, वो चल रहा है किसी स्पीड 4k² से, डिवाइडेड बाय द रेडियस कितना बच्चों, वो है 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4² is 16, 2 is 32 × 10⁻⁻² न्यूटन और सिंपली 0.32 न्यूटन बच्चों। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है। अब देखिए पॉइंट ए पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ लग रहा है, ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्शन सेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है बच्चों। तो जो फोर्स एक्टिंग एट ए है, तो उस फोर्स वेक्टर फोर्स ए का जो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 0.32 माइनस आई कैप न्यूटन। ठीक बात है बच्चों। और जब मैं पॉइंट बी पे पहुंचूंगा तो पॉइंट बी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.32। और देखो यहाँ पे फोर्स बी जो लग रहा है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर सीकिंग है, टुवर्ड्स द सेंटर लुकिंग है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, सॉरी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों वो -j होगा। तो ये तो आ गया आपका दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अब मुझे फाइंड करना है चेंज। तो बच्चों चेंज इन फोर्स डेल्टा एफ विल बी फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जिस किसी का भी आप चेंज फाइंड कर रहे हो। तो बच्चों यहाँ चेंज इन फोर्स फाइंड करना, फाइनल फोर्स, तो फाइनली बॉडी वाज एट बी, तो एफ बी माइनस एफ बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, दैट इज -0.32 जे कैप माइनस 0.32 माइनस आई कैप बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस माइनस एंड दिस माइनस विल मेक इट प्लस, तो इट विल बिकम 0.32 आई कैप माइनस 0.32 जे कैप। सो जो चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन फोर्स आया बच्चों वो आ गया 0.32 आई कैप माइनस 0.32 जे कैप। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस expression of the vector form of force. I would be interested in finding the magnitude of the force. So the magnitude of the force will then be given as the under the root of x component का square of force plus y component का square for force, और उसका under the root निकाल लो बच्चों। चलिए अब ये काम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x कंपोनेंट कितना है बच्चों, वो है 0.32 का होल स्क्वायर, y कंपोनेंट कितना है, वो भी है 0.32 का होल स्क्वायर विद अ माइनस साइन। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 0.32√2 एंड लेट्स सॉल्व इट आउट एंड thereby you will get the magnitude of the force and that will be 0.452 Newton, or you can simply say this magnitude of force will come out to be 0.45 Newton। अब बच्चों इस फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालना। तो चेंज इन फोर्स क्या हुआ, चेंज इन फोर्स डिफाइंड हुआ था फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए, और माइनस एफ ए को मैं लिखूंगा प्लस माइनस एफ ए। ठीक बात है बच्चों। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन इटसेल्फ। अब बच्चों एफ बी फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड, अगर तुम देखोगे तो एफ बी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, और एफ ए फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड था, वो था तुम्हारा
टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस एफ ए फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, तो माइनस एफ ए फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द positive x axis, so my FA force will be along the positive x axis. This is my minus FA force. Now on the head of the first vector, what is the first vector over here, that is FB vector. On the head of the first vector I will place the tail of my second vector, and the tail of the second vector happens to be minus FA vector. So this is the FB vector, that is the first vector. On the head of the first vector I am placing the tail of the second vector, that is minus FA vector. Then the resultant vector will be obtained by joining the tail of the first to the head of the second vector, and this represents my change in force vector. Magnitude of force is same, so this angle will be theta, and this tan theta will be equal to the magnitude of y component, that is minus FA vector, upon magnitude of FB वेक्टर. और जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो FB और FA का मैग्नीट्यूड सेम था, तो tan थीटा 1 आएगा, इससे थीटा की वैल्यू फिर से 45 डिग्री आ जाएगी. बट इस बार ये 45 डिग्री किधर की तरफ डायरेक्टेड है बच्चों, ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्टेड है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है साउथ ईस्ट का. तो 45 डिग्री ये हो गया बच्चों साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से मैं डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ. एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपको हेल्प मिलेगी इस तरह के डिफरेंट अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट whenever similar videos are uploaded you get the notifications for the same. Thank you students. Please share these videos with your friends also.